day to all of you, and here we are with the discussion of the first editorial of March 25th from the Indian Express newspaper, and that is economic relations with China. Right. So most of you would find or might be finding economics as a not very interested in reading such articles. You might find these articles boring, but then still you need to understand all this, right? And therefore, definitely we have to read. In the past few days, what we read was economic relations of India, US, US, China. जितनी भी इतनी reciprocal tariffs और ये सब जो चल रहा था, most of the articles we have been reading. So now it is not that you feel aversion to such topics. वो भी नहीं होना चाहिए. अब तो आदत हो गई है, right? So one more, even if it is boring, but we'll still read it. Right? And for some, it is not for everyone. इतना हमेशा ध्यान रखना कि इकोनॉमिक्स के आर्टिकल्स पढ़ने में मजा भी बहुत आता है क्योंकि हमें पढ़ने का तरीका समझ में आ जाना चाहिए मेन आइडिया कैसे और कहाँ से निकलती है वो समझ में आ जाना चाहिए वो कैटेगरी इतनी कोई डिफिकल्ट होती नहीं है ऐसे पैसेजेस में so it is one thing is there. Now, over the past few years, FDI flows to developing economies have been slowing down, right? So again, ये foreign direct investment अगर ये जो developing economies पर जा रहे थे ये कम होता जा रहा है पैसा इसका मतलब जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो डेवलपिंग इकोनॉमीज में ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रही है दिस हैज बीन ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग और स्लोइंग डाउन राइट Now in 2023, they fell by 6% and 24 by 2% as per the Global Investment Trends Monitor by UNCTAD. In India, FDI flows had hit a record high of 84.8 million in 21-22. Capital flows slowed thereafter, touching 71.2. ठीक है तो ये जो नंबर्स जो है हमें याद नहीं रखना है कि इसमें कितने मिलियन थे या क्या थे पहले कितना था अभी कितना नहीं इट्स नॉट देयर आफ्टर हमें बस इतना दिमाग में रखना है ठीक है that means what is going down in the world, going or happening in the world, India is also facing the same problem. In the first 9 months of this year, April, December, stood at this much 62.4. तो ये नंबर देखकर ही समझ में आ जाता है कि it is slow down. Some countries have in the recent past been more successful than India in emerging as an attractive investment destination. अब इंडिया का अगर ये एफडीआई कम होता जा रहा है जैसे कई सारे देशों का हो रहा था डेवलपिंग कंट्रीज का हो रहा था लेकिन अब एक और चीज उन्होंने कहा कि इंडिया से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ऐसे कई और सारी डेस्टिनेशन कंट्रीज आ जाते हैं जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज अपना पैसा लगा रहे हैं तो इंडिया जैसी कंट्रीज में अगर ये स्लो डाउन हो रहा है तो दूसरी कंट्रीज में इंक्रीज हो रहा है ऐसा क्यों right so the author is trying to build this background and on the basis of which he is trying to point out to something हमें वो चीजें पकड़नी होती हैं ठीक है तो recent past में some countries have been more successful than India जहाँ पे से more successful बोला मतलब comparison होने लगा है and those countries are an attractive investment destination, especially for global firms looking to diversify away from China as part of their China plus one strategy. So they have to diversify away from China. इसका मतलब कि कुछ ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज हैं या डेवलप कंट्रीज हैं जो कि चाइना पे डिपेंडेंट है काफी सारी चीजों के लिए लेकिन अब वो धीरे धीरे चाइना से अपनी चीजें हटा के वो इंडिया जैसे कंट्रीज में कर सकती थी लेकिन इंडिया इस दौर में पीछे पड़ गई पीछे रह गई और बाकी के कुछ कंट्रीज डेस्टिनेशन कंट्रीज बन गई हैं उन वेस्टर्न कंट्रीज के लिए नाउ दिस इज द केस सो व्हाट इज देयर दैट इंडिया इज लैकिंग एंड द अदर न्यू डेस्टिनेशन कंट्रीज आर कमिंग अप राइट सो for these developed countries who are looking for something away from China. So, a Niti Aayog report had also noted that while India has seen some limited success so far in capturing the China plus one strategy, Vietnam, Thailand, Cambodia, Malaysia have become bigger beneficiaries of this strategy. तो अगर चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी अप्लाई की गई है तो इंडिया में थोड़ी सी कम बेनिफिट हुआ इंडिया को और ये जो सम कंट्रीज हैं they have been able to get bigger better benefits right so these are the new destination investment destination and these are attractive ones also इसका मतलब इन कंट्रीज की कुछ तो पॉलिसीज में ऐसा होगा ना जो कि एफडीआई फ्लो वहां पे हो रहा है पर इंडिया जैसी कंट्री में नहीं हो रहा है
In an attempt to attract the foreign investors, the government is now reportedly looking to either dilute or neutralize some of the restrictions. नाउ इट इज लुकिंग टू, पहले हमने झेल लिया कि या उसका नतीजा भुगत लिया कि अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन कुछ और बन गई और इंडिया में इसका बेनिफिट नहीं बन पाया पूरी तरीके से. तो नाउ इंडिया इज चेंजिंग इट्स एटीट्यूड अ लिटिल. इट इज ईदर डाइल्यूटिंग और न्यूट्रलाइजिंग सम ऑफ द restrictions, right, that it had imposed on trade and investment from China following clashes between Chinese and Indian soldiers in Gulf War in 2020. A report in this paper suggests a gradual opening up to China. This could involve facilitating investments by Chinese firms with domestic partners. So, facilitating investments by Chinese firms, ये हो रहा है. A recent example of how this could play out may be instructive. The JSW Group has acquired a stake in MG Motors from the Chinese firm SAIC Motor. Indian industry is also said to be pushing for the easing of some restrictions that had been imposed, especially on visas for Chinese workers and technicians, along with the lifting of certain tariff and non-tariff barriers. तो कुछ जो इम्पोज की गए थे रिस्ट्रिक्शन उसे इजी कर दिया और कुछ को हटा दिया गया. तो ये सारे कदम जो इसमें बताए गए हैं, ऑल दीज आर द स्टेप्स और द मेजर्स टेकन बाय इंडिया. Now, this will be beneficial as Chinese personnel may be helpful in setting up facilities and in training the staff. So, if Chinese personnel are there, then it is going to benefit setting up something new. That the government is considering all its options at a time of global uncertainty is welcome. तो ग्लोबल अनसर्टिनिटी का जमाना है, ये हम अनसर्टिनिटी इंस्टेबिलिटी ये बहुत बार हम आर्टिकल्स में पढ़ चुके हैं. तो ग्लोबल एरिना पे या सिनेरियो में क्या कब होने वाला है कुछ पता नहीं चलता. ठीक है, ऐसी अनसर्टिनिटी की स्थिति में व्हाट इज इंडिया डूइंग इज इट इज कमिंग आउट विद एन ऑल आउट एफर्ट्स जिसे कहते हैं. तो सब कुछ करने के लिए तैयार है वो. ऑल इट्स ऑप्शंस एट द टाइम इट इज कंसिडरिंग एंड अकॉर्डिंग टू द ऑथर दिस इज अ वेलकम थिंग. राइट, सो हियर कम्स द पॉइंट. तो पहले पैराग्राफ में उसने कहा दिया था कि सिनेरियो है क्या और इंडिया कहाँ लूज कर देंगे. सेकेंड में उसने पहले इंडिया के जो उसने मेजर्स लिए वो बात कर ली कि व्हाट ऑल इंडिया इज डूइंग. Now in this third paragraph, it is coming up. The author is coming up with his own opinion that yes, this is something good, a welcome that India has started. A capital-scarce country needs to actively facilitate foreign investment, especially in the manufacturing sector. ये ऑथर का रीजन है कि क्यों वो बोलता है कि ये कदम जो गवर्नमेंट ने उठाया है वो एक बढ़िया कदम है. ठीक है, क्यों ऐसा बोला? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जरूरी है और हमारे पास ज्यादा कैपिटल नहीं है. तो कैपिटल स्कार्स कंट्री है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स चाहिए हमें. और कहाँ पे चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. It must also actively ease the tariff and the non-tariff barriers to ensure deeper integration with global supply chains. Economic Survey 23-24 had also made this case. ये भी हुआ था. तो डीपर इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई ये भी जरूरी है. और यहाँ पे जो इन्होंने केस किया था इकोनॉमिक सर्वे में जो उन्होंने कहा था, arguing that focusing on FDI from China seems more promising for boosting India's exports to the US. Right. So if you see that there is FDI investment from China to the Indian industry, अगर ऐसा होगा तो इंडियन इंडस्ट्रीज फिर एक्सपोर्ट कर सकती हैं यूएस को, similar to how the East Asian economies did in the past. Moreover, with the Trump administration waging a tariff war, reciprocal tariffs are set to be operational from April 2. अब देखो ये additional information दे दी, and this is something that I have been mentioning anytime and every time when we come across these two dashes. So these two dashes would signify what they are talking about. The preceding noun, right? The preceding subject यहाँ पर क्या है? Tariff war. तो टैरिफ वॉर क्या हो रहा है उसके एक एडिशनल जानकारी मिल गई कि अप्रैल 2 से ये चलेगा रेसिप्रोकल टैरिफ. दिस मे बी एन ऑपर्चुन मोमेंट टू ईज द रिस्ट्रिक्शंस. अनलाइक द वेस्ट व्हिच इज नाउ ऑल बट टर्न्ड इट्स बैक ऑन ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, अनलाइक द वेस्ट मतलब अभी हमने ग्लोबलाइजेशन पर पूरी तरीके से अपनी पीठ नहीं मोड़ी है. इसका मतलब वी आर स्टिल इनटू ग्लोबलाइजेशन, हम फिर भी चल रहे हैं वैसे. लेकिन वेस्ट क्या कर रही है? बस टोटल
डी ग्लोबलाइजेशन अभी हुआ नहीं है, लेकिन होने के चांसेस जैसे लग रहे हैं, राइट? उस डायरेक्शन में चल रही है वेस्ट. So unlike the West, which has now all but turned its back on globalization, India stands to benefit from welcoming both trade and investment. तो ट्रेड भी चल सकता है, इंडिया ट्रेड से भी बेनिफिट ले सकती है और इन्वेस्टमेंट से भी कर सकती है, बशर्ते प्रोवाइडेड वो कुछ काम इस इंटेंशन के साथ करना शुरू करे. The high GDP growth that the country witnessed during the mid 2000s was facilitated by higher exports and FDI. तो हायर एक्सपोर्ट्स थे और एफडीआई भी हाई थे. तो वही बात बता रहे हैं कि अगर चाइना से भी इन्वेस्टमेंट हमें मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग पर्सनल, अगर हमें कुछ हेल्प होता है उस तरीके से, सो वी कैन सेट अप द प्लान्स एंड देन स्टार्ट एक्सपोर्टिंग टू द US and Western countries, right? This is what he's saying. Government would do well to move forward on this. Again, the author's point that yes, what the government has done till now is a welcome thing, and why it is so explained here, and then established or concluded again that yes, the government should move in the same direction as it has started, right? So the main ideas हम फटाफट पढ़ लेते हैं इसे. Some countries have been more successful. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया जो ये बताते हैं कि देखो, ये बैकग्राउंड बिल्डिंग है पूरा, जैसे मैंने पहले कहा था. बैकग्राउंड बिल्डिंग मतलब एक कुछ कुछ चीजें वो बता देते हैं, पहले सिनेरियो बिल्ड कर लेते हैं कि हो क्या रहा है, और फिर ऑथर अपनी पॉइंट अपना ओपिनियन देगा. ठीक है, तो यहाँ पे वो यहाँ पे कुछ डेटा देता है, रीजनिंग दे देता है, यहाँ से बैकग्राउंड बिल्ड कर रहा है. और व्हाट इज ही सेइंग that the major point of this paragraph would be that see India has missed jumping into the wagon. It has missed on this strategy followed by the West of China plus one strategy. Other countries have made better benefits, bigger benefits, or they are the more big. They are bigger beneficiaries of the strategy. तो बाकी की कंट्रीज ने क्या बोलते हैं उसे बेनिफिट किया है. इंडिया जितना करना था उतना नहीं किया है, ये ऑथर का कहना है. सो वी हैव दिस पॉइंट हियर stating the problem as well as mentioning that there are other bigger beneficiaries of this strategy. That means mentioning that India has missed somehow on the FDI, which is actually a global issue only, right? Now, in an attempt to attract this, what is to be done? Government is now reportedly looking to either dilute. So these are the steps taken by the government, right? And what can happen, what they could do, they could facilitate investments by Chinese firms with domestic partners. ठीक है, तो अब उसका ये एग्जाम्पल, तो डोमेस्टिक पार्टनर्स का मतलब हो गया कि अपनी ही कंट्री के जो फर्म्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं, उनका चाइनीज पर्सनल के साथ या चाइनीज इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेशन. ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये फैसिलिटीज भी सेटअप हो जाएंगी और फिर स्टाफ ट्रेनिंग भी हो जाएगी. इसका मतलब फिर प्रोडक्ट्स बढ़िया तरीके से आएंगे और फिर हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे यूएस को. तो पूरी स्ट्रेटेजी समझा दी है ऑथर ने कि हाँ, इंडिया इस तरीके से कुछ सोच सकती है, कर सकती है, तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे. द स्टेप्स टेकन विद एग्जांपल suggested also, right? So what India or what all this could involve, and then talking about the consequences or impact. इसका impact किस पर पड़ेगा और कितना और कैसा होगा. ठीक है, तो ऑथर के हिसाब से ये हो जाएगा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट. क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे. एक्सपोर्ट्स बढ़ जाने से क्या होगा, उसका रेलेवेंस उसने अगले उसमें दिया है कि अ, इसके पहले जब 2000s में हुआ था, ठीक है, जीडीपी हाई जीडीपी ग्रोथ था. तो व्हाट वाज द रीजन और व्हाई दिस हाई जीडीपी ग्रोथ वाज देयर? बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट्स एंड बिकॉज ऑफ द एफडीआई. So if India is moving in the same direction in this point of time, then definitely we can look forward for increased economic or GDP growth, right? And this will be the best thing to do. So here comes the author's point again, right? And must also actively, needs to actively, मतलब उसे कुछ कदम करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा ना. पैसिव मतलब कि हाँ ठीक है, देखते हैं जो होता है होता रहेगा, वो नहीं, एक्टिव रहना है, राइट? तो दे हैव टू टेक द स्टेप्स, एंड वॉट एवर स्टेप्स इंडिया हैज स्टार्टेड टेकिंग इज वेलकम,
right? It needs to do, it must also do, and it seems more promising, मतलब positive impact होने वाला है जो हमने पिछले इसमें दिया था, right? So this is how you can actually come up with all the things mentioned here and there, उसको combine करो तो मेरे पास एक या दो थॉट्स आ जाते हैं मुश्किल से, क्या कि स्लो डाउन होता जा रहा है ग्लोबल एरिना में, and India is also facing the same problem. Now, what steps has India taken? One author said that it has missed becoming the beneficiary of this China plus one strategy. Other countries have become. That means India could have also come up as beneficiary there in that case. No problem. Now, what has India started doing? Say, wo mention kar liya. According to the author, it is a good thing that India is doing this. Why? Because getting the help of Chinese partners with the Indian partners, domestic partners ke saath, this is going to help our manufacturing sector or our industry. This is going to bring about increased exports. Why? Because increased exports would suggest or would lead us to a higher GDP growth, establishing the fact that, see, in the 2000s also the high exports and the high FDI actually led us to a higher GDP growth. तो एक एग्जाम्पल के तौर पे उसने एक रेफरेंस दे दिया 2000 का, और फिर कहा कि देखो अभी इस टाइम पे भी इंडिया जो कर रही है वो सही कर रही है, एटलीस्ट उसने कुछ स्टार्ट किया है अच्छे से, एंड नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन एंड व्हाट इट मस्ट आल्सो डू. सो इंडिया शुड मूव इन दिस डायरेक्शन दैट इट हैज टेकन अ स्टेप अहेड. ये हो गया आपकी समरी और ये हो गया आपके मेन आइडियाज, राइट? सो इकोनॉमिक रिलेशन विद चाइना कुड ओपन अप स्पेस फॉर मेन्यूवर, मतलब इंडिया उस तरीके से नेविगेट कर सकती है, मेन्यूवर कर सकती है, गाड़ी चला सकती है अपनी, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ जाए. Government is considering all options at a time of global uncertainties. Welcome. Capitalist class country needs to actively facilitate, especially in the manufacturing sector. This becomes an important line. It could open a space for maneuvers. ये हमारे पास essence हो जाता है. ठीक है, चलो vocabulary इसमें इतनी कोई खास है नहीं अभी, so we are noting down the phrasal verbs then. ठीक है, you're looking to something means your intention is looking to अलग है, और diversify away from, ये एक अलग, from को भी ले लेना उसमें, तो diversify away from दो prepositions एक साथ भी आ सकते हैं, तो this becomes a three word phrasal verb, right? So these are two different phrasal verbs, so kindly note them down. Then imposed on, taxes are imposed on, tariffs are imposed on. Imposed आता है या तो levied आता है, तो दोनों के बाद हमारे पास on word आ सकता है as a preposition. Clashes के साथ between आता है as a preposition, क्योंकि ये phrasal verbs होते क्या है, verbs के साथ preposition का combination हो जाता है, ठीक है? तो clashes between, और now see you can write disagreement over something and between two things. तो हम between कब यूज करेंगे, जब दो चीजों की बात होगी, तो clash between so and so, right? Disagreement between two people A and B. पर किस बात पे डिसएग्रीमेंट है उसके लिए हम ओवर यूज करेंगे. तो बिटवीन हम यूज करेंगे जब दो लोग या दो चीजें मेंशन होंगी, और ओवर यूज करेंगे वो एक टॉपिक जिसके ऊपर डिसएग्रीमेंट चल रहा है या जिस पर एक कंट्रोवर्सी चल रही है, उसे हम तब हम ओवर यूज करेंगे. तो जितने भी कंट्रोवर्सी वाले वर्ड्स होते हैं, दे विल टेक द वर्ड ओवर. और जब हमारे पास दो चीजें मेंशन होती हैं और क्लैश है या फाइट, राइट, तो इट वुड बी बिटवीन two people or between two things or two countries. Now, facilitate करना मतलब to ease or make easy something, right? Facilities मिलना नहीं होता है. If I am facilitating something, so I am an instrument of making some difficult task easy, right? So I am coming up with a very conducive, in a conducive manner, I am making things easy, right? तो उसको facilitating factor बोलेंगे. जैसे कैटलिस्ट कैसे होता है, कैटलिस्ट एक रिएक्शन को फास्ट कर लेता है, स्पीड कर लेता है, तो इजी हो जाता है उन सॉल्ट्स को चेंज होने में, ट्रांसफॉर्म होने में, ठीक है, या रिएक्शन करने में, राइट? सो फैसिलिटेटिंग मींस मेकिंग थिंग्स इजी. इट इज नॉट ओनली प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज,
कंटेक्चुअली आप समझना है, इसमें दो अलग अलग चीजें बोली है मैंने। एक, आपको फैसिलिटीज मिलती हैं या आपको दी जाती हैं, वो अलग बात होती है। फैसिलिटेटिंग मतलब आपका काम इजी करना या होना, वो हो जाता है फैसिलिटेटिंग। So this is like facilitating investments means creating a conducive atmosphere for the investments, right? डोमेस्टिक पार्टनर्स मतलब अपनी ही कंट्री के। तो डोमेस्टिक के लिए, अच्छा ये तो बड़ा इजी वर्ड है, तुम इसे देख के हटा भी दोगे, लेकिन डोमेस्टिक के लिए हम दो तीन वर्ड्स लिख लेते हैं। एक होता है नेटिव। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई यूज दिस वर्ड फॉर द पार्टनर्स और रिप्लेस दिस वर्ड डोमेस्टिक है, नो। नेटिव मतलब और डोमेस्टिक मतलब अपनी कंट्री के। जब अपनी कंट्री की बात होती है तो इंडिजिनस होता है, ठीक है। इंडिजिनस इंडस्ट्रीज होती है मेनली, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। लोग जब अपने ही कंट्री के होते हैं, अपने एरिया के होते हैं, तो एबोरिजिन होता है, ठीक है। तो एबोरिजिन इंडस्ट्रीज हो सकती है, ठीक है। जैसे कारपेट इंडस्ट्रीज है, जूट इंडस्ट्रीज है, तो आप इनको इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज बोल सकते हो, क्योंकि जिस एरिया में ये चीजें बनती है, रॉ मटेरियल होता है, उसी एरिया में मेनली इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश की जाती है। तो इंडिया की इंडस्ट्री है तो इंडिया के लिए इंडिजिनियस होगी। यूके की कोई इंडस्ट्री है, यूके के लिए इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज हो सकती है। यूएस के लिए उसकी इंडस्ट्रीज, इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज अलग होंगी, राइट। तो अपने ही एरिया, अपने ही नेटिव लैंड में जब इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश की जाती हैं, तो दे आर द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड दे आर द इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज, राइट। तो इम्पोज के साथ मैंने ऑन बता दिया था, तो इधर फिर से मार्क इसलिए क्या, क्योंकि अगर इम्पोज ऑन है तो लिफ्टिंग ऑफ होगा, राइट। लिफ्टिंग ऑफ समथिंग, तो उधर से हटा देना इज लिफ्टिंग ऑफ, उस पर लगा देना इज इम्पोज ऑन, राइट। तो टैरिफ या तो लगाए जाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, तो इम्पोज्ड ऑन। हटाए जाते हैं तो लिफ्टेड फ्रॉम, ठीक है। प्रॉमिसिंग फॉर बूस्टिंग इंडिया सिक्स, प्रॉमिसिंग विद मीन शोइंग पॉजिटिव रिजल्ट्स, ठीक है। आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, या तो आप उसको प्रोजेक्ट कर सकते हो कि हाँ पॉजिटिव रिजल्ट्स होने वाले हैं, या ये एनकरेजिंग फैक्टर है कि हाँ ऐसा होगा, तो इट इज गोइंग टू गिव अस फ्रूट, राइट। तो दैट बिकम्स प्रॉमिसिंग। वेजिंग अ टैरिफ वॉर, ये ऐसे ही आप कर लो, वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट समथिंग, राइट। तो दिस अगेन बिकम्स अ फ्रेज। ऑल बट टर्न इट्स बैक ऑन ग्लोबलाइजेशन, टू टर्न योर बैक ऑन समथिंग मतलब आप उसको अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आपने उससे मुंह फेर दिया है, तो यू आर टर्निंग योर बैक ऐसा, ठीक है, कि चलो रहने दो, मुझे नहीं देखना है, तो देन यू टर्न योर बैक। तो ये इडियम्स होते हैं जो कि लिटरली समझे जाते हैं और फिर अप्लाई कर देखते हैं, उसको समझ सकते हैं हम कंटेक्चुअली, right? So that was all in the vocabulary part. But then more to read, may you have two articles from the Indian Express only. The Ram Manohar Lohia we need. एक बार ये पढ़ लेना, ठीक है? It is again about the person, but you will be able to understand not only a personality, but you will get quite good words also there. Then Justice Yashwant Verma case, an open justice, of course. अब देखो जिनको मैंने सजेस्ट किया है कि आप लीगल का कुछ पढ़ लिया करो, तो ये एनीथिंग रिलेटेड टू द जस्टिस सिस्टम और द जुडिशरी सिस्टम और द जुडिशियल सिस्टम, कुछ भी हो आपको वो पढ़ना ही है, बिकॉज अगेन दिस कम्स अप एज अ डिफरेंट जॉनर हियर। एंड अगेन ट्रूथ एंड ट्रांसपेरेंसी ऑन द जुडिशरी, नाउ दीज टू आर कनेक्टेड टू द सेम थिंग, राइट। बट दिस वन इज इन इंडियन एक्सप्रेस एंड दिस इज फ्रॉम द हिंदू, सो आई वुड सजेस्ट दैट रीड टू आर्टिकल्स, बोथ द आर्टिकल्स पढ़ना है, सही रहेगा। So that's all for today. And stay logical, stay positive, and be logical and be positive. And see you soon. Thank you.